हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग। तो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.3। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 इज टोटली बेस्ड ऑन एरिया ऑफ ट्राइंगल। A triangle will be given whose three coordinates will be given and we have to find out the area of triangle. Also, with the help of formula of area of triangle, we will prove that how the 3 points will be collinear. So, let's discuss that area of triangle. Suppose that A, B and C. This triangle is given A, B and C, whose coordinates are x1 by 1, x2 by 2 and x3 by 3. This triangle is given and we have to find out its area. So, area of triangle. Area of triangle. So, the formula to calculate area of triangle will be 1/2 into x1 by 2 minus by 3 plus x2 by 3 minus by 1 plus x3 by 1 minus by 2. This is the formula by which we can calculate area of triangle, dear students. Okay, one more important thing is that कि if 3 points are collinear, number 1, number 2, collinearity of 3 points, it means that suppose that 3 points are given. Let A x1 by 1, B x2 by 2 and C x3 by 3 be the 3 points. And we have to prove that all 3 points will be collinear. Then how to prove, है ना, कैसे प्रूव करेंगे? Before going to prove the collinearity of 3 points, first of all we have to understand that what are collinear points. तो बच्चों, collinear points are those points which are lie on the same line. हम ऐसे पॉइंट्स को कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 by 1, x2 by 2 एंड x3 by 3 हैं. अब हमसे ये पूछा है कि बताइए ये पॉइंट्स कॉलिनियर हैं या नहीं. तो प्यारे बच्चों, आप खुद से सोचो कि अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो इनसे ट्राइंगल बन सकता है क्या? अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो क्या हम इनसे ट्राइंगल बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते. तो नहीं बना सकते तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इन तीनों पॉइंट्स से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया कितना होगा? 0. सो लेट A, B and C be the 3 points and they will be collinear, है ना. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि if 3 points A, B and C will be collinear.
area of triangle equal to 0. So this is the condition. If you want to prove that 3 points will be collinear, then simply आप उसका एरिया निकालिए, आप ट्राइंगल का एरिया निकालिए, और अगर ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स कैसे होंगे, कॉलिनियर होंगे। ओके बच्चों, तो हमने केवल आपको दो बातें बताई कि इफ़ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज़ गिवन x1 by 1, x2 by 2, x3 by 3, then how to calculate area, or if 3 points are collinear, then with the help of formula of area of triangle, how we will prove that given points will be collinear। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल 11, then after we will proceed to exercise। Example 11 on page 169। Find the area of triangle whose vertices are 1, -1, -4, 6 and -3, -5 are given। Okay, so what is given? एक ट्राइंगल बनाते हैं, इसके वर्टेक्स हमें दे रखे हैं, तो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, -1, -4, 6 एंड -3, -5। तो प्यारे बच्चों, हमें इस ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स एरिया। सो लेट ए 1, -1, B -4, 6 and C -3, -5 be the vertices of triangle ABC। ये ट्राइंगल ABC के क्या हैं, वर्टाइसेस हैं बच्चों। तो अब हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ x1 by 2 - by 3 प्लस x2 by 3 - by 1 प्लस x3 by 1 - by 2। This is the area of triangle, putting the value in this formula। So x1 means you can write here, this is x1 by 1, this is x2 by 2 and this will be x3 by 3। आप मेंशन कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो x1 is 1 by 2 - by 3, तो by 2 कितना है बेटा 6, by 3 कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5, x2 -4 by 3 -5, by 1 -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, x3 -3 by 1, तो by 1 -1 and by 2, तो by 2 is 6। okay, so this will be 1/2, 6 of 5 11, तो 1 multiply 11 -4, -5 plus 1 that is -4, -3 -1 -6 -7। so 1/2, 11 बन जाए 11, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 and 3 7 जा 21। so this will be 1/2 into 1 1 2 और 6 8 and 2 और 1 3 and 1 4 48। 2 से इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए 24। so 24 एरिया इज ऑलवेज मेजर्ड इन square unit। so what we can do, so what we have find out, so dear student, we have find out the area of triangle is equal to 24 square unit। this is our final answer। so what we can write, so we can write in our final answer, hence the required area
required area of triangle ABC equal to 24 square unit, and this is our answer. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कैसे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट किया? सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. हेलो बच्चों, तो अभी हमने किया एग्जाम्पल 11. आई होप कि सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा. बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं कॉलिनियर पर बेस्ड, है ना. जैसे एग्जाम्पल 14. इन एग्जाम्पल 14 find the value of k if the points a 2 3, b 4k and c 6 minus 3 are collinear. Means we have to find out the value of k and the given points are collinear. तो देखिए कैसे करेंगे. Let a 2 3, b 4k and c 6 minus 3 be the given points. Be the given points. तो हमें ये 3 पॉइंट्स गिवन है बच्चों, और हमें ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कॉलिनियर है. तो कॉलिनियर प्रूव करने के लिए अभी हमने एक कंडीशन बताई थी आपको कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट्स इक्वल टू 0. इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स इज 0 देन पॉइंट्स विल बी कॉलिनियर. तो वेरी इजी, हम यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म कर देते हैं. A, B and C. The coordinates of A is 2 3, B is 4k and C 6 minus 3. और हमें प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कॉलिनियर. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस पॉइंट्स A, B and C will be collinear if area of triangle equal to 0. Area of triangle equal to 0. ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर कब होंगे? जब इनसे बना ट्राइंगल का एरिया 0 होगा. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. 1/2 x1 बाई 2 माइनस y3 प्लस x2 बाई 3 माइनस y1 प्लस x3 बाई 1 माइनस y2 इक्वल टू 0. Putting the value in this formula, so 1/2 x1. So you can write x1 y1 here. This is your x2 y2 and this will be x3 y3. ये जो वर्टेक्स हमें दे रखे हैं बच्चों, आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए यू कैन राइट x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3. नाउ पुटिंग द वैल्यू, तो x1 इज 2, y2 माइनस y3, तो y2 कितना है बेटा, k, माइनस y3 कितना है, -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस x2, तो x2 इज़ 4 बाई 3, तो बाई 3 कितना है, -3, बाई 1 कितना है 3 प्लस x3, तो x3 कितना है बेटा 6 बाई 1 कितना है 3 और y2 कितना है बाई 2 4 k, y2 कितना है k इक्वल टू 0. अब क्या करें, अब इसको सॉल्व करते हैं. तो 1/2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई k से किया 2k, 2 का 3 से किया 6 प्लस 4 इंटू -3 -6, 6 का मल्टीप्लाई 3 से किया 18,
6 का k से किया, 6k इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अब इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू 2k, दिस इज 2k एंड दिस इज -6k, तो दिस विल बी -4k, प्लस का 6 प्लस का 18, तो 18 और 6 24, एंड दिस विल बी प्लस माइनस माइनस 4 6 24 इक्वल टू 0, एंड 24 से 24 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो 1/2 इंटू -4k इक्वल टू 0, एंड यू कैन ऑल्सो कैंसिल दिस, 2 2 जा 4, सो -2k इक्वल टू 0, तो सिंपली k इक्वल टू 0/-2 विच इज़ 0। सो व्हाट वी हैव गॉट बच्चों, सो वी हैव गॉट k इक्वल टू 0, तो देयरफॉर k इक्वल टू 0। तो what we can write? We can write hence the required value of k equal to 0. आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन में क्या ख़ास बात थी, हमें 3 पॉइंट्स गिवन थे और हमसे बोला गया था कि ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। मीन्स इन क्वेश्चन इट वाज गिवन दैट द गिवन पॉइंट्स वाज कॉलिनियर, एंड सिंस द पॉइंट्स वर कॉलिनियर, दैट्स व्हाई वी यूज्ड द प्रॉपर्टी ऑफ कॉलिनरिटी। तो प्रॉपर्टी क्या है कॉलिनरिटी की? इफ 3 पॉइंट्स विल बी कॉलिनियर देन द ट्राइंगल सो फॉर्म्ड by using these points equal to 0. Understood बच्चों? Okay. अब बच्चों, अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.3 टोटली बेस्ड ऑन एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पॉइंट्स आर कॉलिनियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन। वेरी इजी, अभी कराया था आपको। क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन बताएंगे आपको हम, कोई भी देख लीजिए फर्स्ट सेकंड में से। तो सपोज़ फर्स्ट ही बताते हैं, पॉइंट्स 2 3 -1 0 एंड 2 -4, 3 पॉइंट्स आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वेरी इजी, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसके वर्टेक्स हमें गिवन है, ए के वर्टेक्स हैं 2 3, बी के वर्टेक्स हैं -1 0 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -4। तो हमें इस ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करना है बच्चों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट A 2 3, B -1 0 and C 2 -4 be the vertices of triangle ABC. Understood? अब since area of triangle ABC equal to, तो इसका फॉर्मूला 1/2 x1 by 2 - by 3 प्लस x2 by 3 - by 1 प्लस x3 by 1 - by 2। This is the formula to calculate area of triangle. Putting the value in this formula, तो 1/2 x1, तो x1 यू कैन राइट हेयर, आप यहाँ पे लिख सकते हैं x1 by 1, दिस इज x2 by 2 एंड दिस इज x3 by 3, है ना। ऐसा लिखने से क्या है, थोड़ा सा आसान हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि इजीली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x1 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू कितनी है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x1 कितना है 2,
बाई टू माइनस बाई थ्री, तो बाई टू कितना है 0 और बाई थ्री कितना है -4, तो माइनस माइनस +4। x2, अब x2 की वैल्यू कितनी है -1 बाई थ्री माइनस बाई वन, तो बाई थ्री कितना है -4, बाई वन कितना है 3 प्लस x3, तो x3 कितना है 2, बाई वन कितना है 3, बाई टू कितना है 0। ओके बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2, 2 का 4 से इंटू करेंगे, 2 4 जा 8, या फिर ऐसे ही कर लो, 0 में 4 को ऐड करेंगे 4 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस -4 -3 -7 प्लस 2 इंटू 3 - 0 3 ही आएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए। 1/2, 2 4 जा 8, माइनस माइनस प्लस 7 1 जा 7 एंड 2 3 जा 6। तो इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे आगे तो क्या मिलेगा देखिए। तो दिस विल बी 1/2 इंटू 8 और 7 15 और 6 21। तो when you will multiply 21 1/2, so 21/2 square unit. So this is area of triangle, 21/2 square unit. So finally you can write your final answer. Hence the required area of triangle ABC equal to 21/2 square unit. आंसर अंडरस्टूड बच्चों। तो मैं समझता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना अब आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं, तब तक आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। सेम क्वेश्चन अभी हमने एग्जाम्पल में किया था, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के कौन सा था, एग्जाम्पल 14। तो इसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, सेम टू सेम। एक क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चंस आर गिवन। एक कर लेते हैं, सपोज सेकंड कर लेते हैं। तो सेकंड में लिखा है 8 1 k -4 एंड 2 -5 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। दिस इज k बेटा, है ना, ये k है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कॉलिनियर हैं। कॉलिनियर हैं तो डेफिनेटली एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे, और एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे तो इनसे ट्राइंगल बन नहीं सकता। नहीं बन सकता तो उस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 0 होगा। तो यही कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, हालांकि ट्राइंगल बन नहीं सकता, याद रखना, है ना। कॉलिनियर पॉइंट्स चूँकि एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो दे नेवर मेक अ ट्राइंगल, ठीक है, इसलिए वो कभी ट्राइंगल नहीं बना सकते। लेकिन हम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यों निकालते हैं, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें पता है कि कॉलिनियर पॉइंट्स हैं तो ट्राइंगल नहीं बना सकते, ट्राइंगल नहीं बना सकते तो ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट A 8 1 B k -4 and C 2 -5 be the given points. Be the given points. Be the given points. ये हमारे गिवन पॉइंट्स हैं बच्चों, A B C। हमें गिवन है कि सिंस पॉइंट्स A B and C will be collinear if, ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर कब होंगे, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा।
दिस इज द कंडीशन, है ना, दिस इज द कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2 इक्वल टू 0। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम 0 लेके चलेंगे। सो 1/2 putting the value in the formula, so this is x1 y1, you can see this is x2 y2 and this is x3 y3. So putting the value, so x1 is 8, y2 minus 4 by 3 minus 5, so minus minus plus 5, x2 k by 3 minus by 1 minus 5 by 1 1 x3 2 by 1 1 by 2 minus 4 minus minus plus 4 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ये हमने फॉर्मूले में क्या कर दी, वैल्यू पुटअप कर दी। सो दिस विल बी 1/2 इंटू 8 minus 4 plus 5 that is 1 k plus k minus 5 minus 1 minus 6 plus 2 plus 1 plus 4 plus 5 equal to 0. So this will be 1/2, 8 बन जा 8 plus minus minus 6k and 2 5 जा 10 equal to 0. 1/2 into plus 8 plus 10 plus 18 minus 6k equal to 0. This 2 can be multiplied by 0, so it will be 0. So 18 minus 6k equal to 0. What we can do now? Minus 6k equal to minus 18, हमने इसे ट्रांसपोज कर दिया, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, k इक्वल टू 18/6 यानी 6 3 जा 18, तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 3, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 3, दिस इज अवर आंसर। तो हम क्या लिख सकते हैं अपना फाइनल आंसर, हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 3, आंसर। अंडरस्टूड बच्चों, समझ में आया आप लोगों को हाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन, व्हाट कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग। ओके, चलिए तो एक क्वेश्चन और करेंगे, है ना, वी विल डू ओनली सिंगल क्वेश्चन, आफ्टर दैट दिस एक्सरसाइज विल बी ओवर, because all the questions are based on only this, all questions are based on same concept. Okay, one more question, question number 4, लास्ट क्वेश्चन और करेंगे इसका। व्हाट इज द क्वेश्चन, रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि हमें करना क्या है। इसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices taken in order are -4 -2 -3 -5 3 -2 and 2 3। हमें एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है जिसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं। तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल आर अ क्लोज्ड फिगर विच इज़ मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। क्वाड्रिलेटरल एक 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई क्लोज्ड फिगर होती है। तो हम इसमें सपोज कुछ भी, एनीथिंग एल्स, कुछ भी, है ना, आप जैसे भी चाहें आप एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा चाहें। तो ऐसे भी बना सकते हैं, दिस इज क्वाड्रिलेटरल लाइक ए बी सी एंड डी। ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया।
इसके वर्टाइसेस हमें गिवन है, तो वर्टाइसेस क्या हैं, -4 -2 -4 -2, बी के हैं -3 -5, सी के हैं 3 -2 और डी के हैं 2 3। ओके, एंड व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में इसका एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हमें इसमें किसी एक डायगोनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, हम इस AC को ज्वाइन कर देते हैं। तो व्हेन you will join AC, then this given quadrilateral will be divided into 2 triangles। जब आपने डायगोनल AC को मिला दिया तो ये जो क्वाड्रिलेटरल था ये 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। पहला ट्राइंगल बन गया ट्राइंगल ABC, दूसरा ट्राइंगल बन गया ट्राइंगल ADC। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC निकालेंगे और दोनों एरियाज़ को आपस में ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा बच्चों। तो करते हैं, देखो तो लिखते हैं सबसे पहले, लेट A -4 -2 B -3 -5 C 3 -2 and D 2 3 be the coordinates of the vertices of quadrilateral ABCD। ओके, अच्छा हम इसमें ये भी लिख देते हैं कि ज्वाइन AC, मतलब AC को हमने मिलाया है। अब क्या करें, अब हमें पता है, क्या पता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD can be calculated by adding the area of triangle ABC plus area of triangle ADC। तो हम इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, और उसके बाद दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को आपस में ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए, अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ x1 by 2 minus by 3 plus x2 by 3 minus by 1 plus x3 by 1 minus by 2। ये हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा लिया बच्चों। इसमें वैल्यू पुटअप कीजिए, तो x1, so this is x1 by 1, this is x2 by 2 and this will be x3 by 3 because we are calculating area of triangle ABC। तो x1 minus 4 by 2 minus by 3, तो -5 -3। ओके, x1 कितना है, -4 by 2 -5 by 3 -2, तो माइनस माइनस +2 प्लस x2 कितना है, -3 by 3 -2 by 1
-2, तो माइनस माइनस +2 एंड x3 3 बाई 1 -2 एंड बाई 2 -5, तो माइनस माइनस +5। ठीक है बेटा। x1 कितना है -4 बाई 2 माइनस बाई 3, तो -5 माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया। x2 हमारा -3 है, बाई 3 -2 है, बाई 1 -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। x3 +3 है, बाई 1 -2 है और बाई 2 -5 है। ओके, तो माइनस माइनस +5, तो दिस विल बी 1/2 -4 -5 +2 -3 प्लस माइनस माइनस -2 + 2 0, दिस टर्म विल बी 0 +3 -2 + 5 +3। ओके, सो कितना आया देखो, चेक करो। 1/2 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, दिस टर्म विल बी 0, 3 3 ज़ा 9 एंड 12 9 21 यानी 21/2 स्क्वायर यूनिट, 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये क्या आ गया बच्चों? दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो देखिए, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। पुटिंग द वैल्यू इन द फार्मूला, फार्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं। सो ये हमारा x1 बाई 1 है, ये अब x2 बाई 2 हो जाएगा और दिस विल बी x3 बाई 3 ADC। ओके, तो 1/2 x1 -4 है, बाई 2 माइनस बाई 3, तो बाई 2 कितना है 3, बाई 3 कितना है -2, तो माइनस माइनस +2, x2 तो x2 कितना है +2, बाई 3 माइनस बाई 1, तो बाई 3 यानी -2, बाई 1 तो बाई 1 कितना है -2, तो माइनस माइनस +2 प्लस x3, तो x3 कितना है 3, x3 कितना है 3 एंड बाई 1 माइनस बाई 2, तो बाई 1 कितना है -2 और बाई 2 कितना है 3। ओके, अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 -4 3 + 2 यानी 5 +2 -2 + 2 0 +3 -2 -3 -5, तो 1/2 इंटू -20, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 3 × 15, दिस विल बी 1/2 -20 -15 -35/2, इग्नोरिंग माइनस साइन, so this will be 35/2 square unit। अंडरस्टूड? वाई इग्नोरिंग माइनस साइन? हमने माइनस साइन क्यों इग्नोर कर दिया? एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कांट बी नेगेटिव, किसी भी ट्राइंगल का एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। तो व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड? वी हैव कैलकुलेटेड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 21/2, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC विच इज़ 35/2, दोनों को ऐड कर देते हैं। सिंस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ओके, तो दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड कर देते हैं। दिस विल बी 21/2 प्लस 35/2, सो कितना आया? सेम डिनोमिनेटर है, 2 आएगा, न्यूमरेटर एज इट इज़ 21 + 35 एंड दिस विल बी 5 1 6 and 3 2 5
56 by 2 and 2 1 ja 2, 2 28 ja 56, 28 square unit. This is our final answer. Hence the required area of quadrilateral ABCD equal to 28 square unit. This is our answer. तो प्यारे बच्चों, क्या सीखा आपने? तो हमने आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हमने आपको सिखाया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स की कंडीशन क्या होती है, और 7.3 के हमने आपको 3 क्वेश्चंस कराए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एक कॉलिनियर का और एक एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। 2 हमने आपको एग्जांपल कराए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। Definitely some questions I have left for you, so you can try to solve by yourself. If you are having any problem, then you can definitely write in comment box, sir, I am not getting how it will be done. Then I will definitely make the separate video for the living questions. Okay, till then, take care.